important, and I stand against the motion. In the recent times, where we come across plethora of incidents of data breaches cases, like infamous Cambridge Analytica case to influence US elections, how Cobra Post exposed Paytm, how Aadhaar details of citizens was sold merrily for just rupees 500. The need for individual data privacy has become crucial. There are various legislations like Personal Data Protection Bill in India, GDPR by European Union that have come to rescue us. But a very important aspect of this remains unaddressed. That is national security. With regard to terrorism, the use of social media platforms is widely by terrorist groups, domestic threats, foreign intelligence agencies, and criminal organizations to further their illegal activity and to recruit, radicalize, and raise funds. To reduce this, some loss of privacy and tighter security measures are required. True, thus this affects the innocent as well as the guilty, but as wisely said, nothing is above somebody's life. While we talk about Aadhaar data leaks, on the contrary, we should also know how digital surveillance has helped us. Today, when governments of many nations are putting their concern for privacy aside and instead turning towards mobile apps to trace the contacts of those infected with COVID 19, like the infamous Arogya Setu, how it has saved the lives of millions of people. Thus, the bigger question is someone's private data above somebody's life? I believe your conscience would answer that pretty well. But I consolidate my stand by saying that yes, Your time's up. national Your time's up, security Sakshi. outweighs individual privacy. Thank you. Thank you, Sakshi. All right. Next participant is Said Aksha. Said Hi, sir. Am I visible and audible? Yeah. Okay. So, good evening, one and all. Since I am Sayed Aksar, and I am here to talk about why individual data privacy is important. Ever wondered why in August 2018, Supreme Court declared privacy as fundamental right? Because there were many agendas which took place. There were many things which took place which actually hindered the individual privacy, as well as the same time it caused great effects. If I talk about two examples, one is Cambridge Analytica. They used likes. According to their likes, they spread propaganda against political parties. Second thing, if I say, I don't know how many of you remember the Uttar Pradesh case in when farmers dumped potatoes in front of Yogi Adityanath's house, and Yogi Adityanath was so frustrated with this that he took 10,000 people's phones on tapping. Now, how ridiculous is that? Now, just imagine yourself, you're talking to maybe some unicorns or flowers in your life, and suddenly somebody's sitting right there listening to your stories. It is a privacy invasion. Secondly, Aadhaar card controversies, we have heard a lot of times. Look, on Facebook, it is just likings and all, but on Aadhaar card, we have all kind of details, our caste, our creed, our religion, our education, on the basis of which many agendas can be spread, many propagandas can be fed, and because of that, a person can commit a crime in your name. A person can do something wrong in your name, as well as the political parties can do the same thing, because individual privacy is something which should be really hidden. Not government, not companies, they should be transparent, but individual privacy is something which should be really hidden, that needs security. So all I want to conclude is, it is a fundamental right and it should be private, because the situation of coming terrorist and making something illogical is out of the world situation. It is an abnormal situation right now, because it does not prevail like every now and then. It has to be 135 crore having 5 terrorists and okay, thank you. Yeah. Thank you, Said. All right. The next We are now moving participant to the next participant. Yeah. Shivam Pandey. शिवम पांडे या हेलो एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, तो अगर मेरी आवाज में कुछ उतार चढ़ाव आ जाए तो उसके लिए मैं पहले आपसे क्षमा चाहता हूँ। जो हमारा आज का टॉपिक है उसको मैं शुरुआत करता हूँ भारतीय संविधान में निजता के अधिकार, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 21 की उसकी परिभाषा से। उन्होंने कहा है कि जो निजता का अधिकार है वो सरकारी एवं निजी कार्यों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न परंपराओं का एक तत्व है।
जिसकी शुरुआत मैं आपको आयाम बताता हूं कि फ्रांस की क्रांति से हुई थी, जहां पर फ्रांसीसी क्रांति के बाद राजतंत्र को, जो एक निरंकुश राजतंत्र था, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था और उसके बाद समानता का व्यवहार, स्वतंत्रता का व्यवहार सबके साथ किया जाने लगा था। 1991 में सोवियत संघ का जब विखंडन हुआ तो हमारे जॉर्ज बुश जो थे, पहले जॉर्ज बुश सीनियर, उन्होंने किस तरीके से मिडिल ईस्ट में इन नीतियों की शुरुआत करी और किस तरीके से अपनी सॉफ्ट पावर को वहां पर आरोपित किया, तो इसकी शुरुआत मैं वहां से कह सकता हूं। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि इसकी शुरुआत भी अमेरिका से ही होती है, जब अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी के एक सीआईए के पूर्व एजेंट एडवर्ड स्नोडेन ने निजी कंपनियों का डेटा जब लीक कर दिया था। और वही जब हम देखते हैं कि प्रेसिडेंसी के चुनाव में कैम्ब्रिज एनालिटिका, जिसे साक्षी ने अभी कोट किया था, तो उसने किस तरीके से रूसी हस्तक्षेप के द्वारा लोगों के निजी डेटा को उठाकर और किस तरीके से लोकतंत्र की गरिमा का हनन किया, उसकी हत्या की, यह एक बहुत बड़ा तत्व है। और इसकी भारत में हमें शुरुआत को समझना पड़ेगा कि इसमें भारत की शुरुआत होती है 1962 के खड़ग सिंह के केस से, जहां पर 9 जजों की पीठ ने 1962 में इसको मानने से मना कर दिया था कि निजता का अधिकार हमारे जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत है। उसी के अंतर्गत हम हेवर कॉर्पस को देखें या सुचिता श्रीवास्तव का केस देखें, जो न्यायालय के व्यक्तिगत निजी डेटा को ही लेकर हुआ था कि उनका जैसे उनका टेप जो हुआ, रिकॉर्ड हुआ, तो उसमें न्यायालय ने एक परिभाषा दी थी कि तकनीकी के माध्यम से जो राज्य दखल, तकनीकी के माध्यम का जो दखल है वो राज्य के दखल से बढ़कर है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो हमें राज्य का समझना पड़ेगा। जो निजता की डेटा प्राइवेसी है वो मनुष्य के गरिमापूर्ण अस्तित्व का एक अंग है। लेकिन चंद्रशेखर के केस में ये हमें पता पड़ेगा, जब हमारी बात आती है आधार का, तो चंद्रशेखर ने इसको केस को किया था। ओके, थैंक यू शिवम पांडे। टाइम अप हो The चुका है, next- तो आप कंक्लूड कर दें। क्या मैं एक पॉइंट रख सकता हूं अगर आप चाहें तो? या श्योर श्योर श्योर। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि के चंद्रशेखर का जो केस था आधार कार्ड वाला, जिसमें उन्होंने कहा था कि निजता का हनन हो रहा है आधार कार्ड में, जिस तरीके से उन्होंने जब बिल को अप्लाई किया, जब उन्होंने मतलब हमारा मनी बिल आया, तो उसमें उसको किस तरीके से उन्होंने हर चीज से कनेक्ट किया। तो उस समय न्यायालय ने एक स्टेटमेंट कहा था जिसको मैं कह के कंक्लूड करूंगा। उन्होंने कहा था कि कोई भी अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान का हर एक अधिकार अपूर्ण संविधान है। जब उस पर भारत की संप्रभुता, अखंडता की बात आती है, या कोई व्यक्ति किसी दूसरे की निजता का हनन करता है या उसकी डेटा प्राइवेसी को चोरी करता है, तो वहां पर सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है और उनके डेटा को उठा सकती है, जैसा कि हमने सुशांत सिंह के केस में देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Shivam Pandey. The next participant is Shivam Singh. Next participant is Shivam Singh. Hello everyone. Good evening everyone. So much of my points have been taken by the earlier participants, so I won't be taking long here. I just would be putting some things which had been taken up, just like the data privacy and the data security. Many of here didn't get it clear that there is a difference between the data privacy and the data security. When we talk about the data privacy, it is much more concerned to the information we share with the private with our consent, right? And the data security is much more related to the third party. They are responsible for the securing our data at a bound to. They are bound to do it, and they are rightfully responsible if there is any breach. While talking about the data privacy and its concern, we often forget that how usually we forget to see the privacy policy and terms and condition of any app. We just install it without even recognizing what kind of things it would be taking in the consent of us. Just we put the okay and get it done. Just we want, because we are in so rush that we just want to have that service that we want. We doesn't care what kind of privacy it would be taking and with which types of third parties it would be sharing. So at this, I would be resting my case. Thank you, everyone. Thank you, Shivam. The next participant is Swagatam. Next participant is Swagatam. स्वागतम, क्या आप यहाँ पे हैं? आई गेस उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है शायद।
अच्छा ठीक है, नेक्स्ट तो फिर आगे पार्टिसिपेंट आ जाइए प्लीज। द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज वैभव दुबे। वैभव दुबे। Good evening, everyone. Myself, Vaibhav Dubey, and I'm from here. Right now, I'm in Dehradun. I'm studying in Doon Business School. जैसे कि मेरा नंबर सबसे आखिरी था, तो लगभग जो मैंने सोच रखा था मैं बोलूंगा सारी चीजें बढ़ चुकी हैं, लेकिन मैं बहुत दूर न जाके मैं नजदीक की चीजें बताता हूँ। जैसे कि हम सब के साथ या हम सबके किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो हमसे संपर्क में है, आपने देखा जरूर होगा, एक अभी फेसबुक से मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे थे कि मैं आपसे इतने रुपए की डिमांड कर रहा हूं और आदमी उसको पेमेंट भी कर रहा था। तो मेरे हिसाब से वो भी एक तरह से प्राइवेसी का हनन ही है। और दूसरी बात, मैं बहुत दूर ना जाके एक चीज और छोटी सी बोलूंगा, हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अपने फोन में, तो उसमें परमिशंस मांगता है, जहां तक मुझे ज्ञात है। तो परमिशंस में एक ऑप्शन रहता है कि आप उसे अपनी गैलरी का, आप अपने उसे कॉन्टैक्ट का, आप अपने उसे और प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस दे सकते हैं या वो एक्सेस ले सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर इंसान जागरूक है, अगर इंसान चाहता है कि उसकी प्राइवेसी का हनन ना हो, तो एक बार इंसान को वो चीज वहां पे सोचनी चाहिए। और बहुत कुछ तो नहीं बचा मेरे पास, मेरे सभी मित्रों ने एक एक पॉइंट जो मैं सोच रखा था बोल दिया, एंड आई विल रेस्ट माय केस। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू वैभव। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आज के जूरी मेंबर योगेश कुमार त्रिपाठी सर से कि वे एक क्वेश्चन प्रेजेंट करें जिसपे आप सभी लोग एक एक करके अपने पॉइंट रख सकते हो, प्लस अपने आर्गुमेंट भी एक दूसरे से रख सकते हैं। इस पूरे राउंड के लिए हमारे पास जो टाइम लिमिट है वो है 12 मिनट की। तो जितनी जल्दी हो सके, जितने शॉर्ट टर्म में हो सके, आप अपने प्लीज पॉइंट रखिएगा। सर, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज अपना प्रश्न रखें यहाँ। आप सभी लोगों के लिए मेरा ये है, या चर्चा का मुद्दा ये है, साइबर सिक्योरिटी, या अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया का क्या रोल है हमारे नेशनल सिक्योरिटी में और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में। मैं अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ, साइकोलॉजिकल वॉर में और साइबर सिक्योरिटी में आज के डेट पे सोशल मीडिया का क्या रोल है? क्या मैं अपने पॉइंट रख सकता हूँ सर? मेरा नाम शिवम पांडे। जी एक एक करके सभी लोग कर सकते हैं। चैट बॉक्स में प्लीज मैं अपनी एक बात आप सभी के साथ साझा और करना चाहूंगा कि आप सभी लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी ऐसी चीज का नाम ना लें कि आपको वो चीज हम अगर यूट्यूब पे डालना चाहें या कहीं और डालना चाहें तो हमें दिक्कत हो। दूसरी चीज ये है कि मैं जो भी मैक्सिमम मार्क्स देता हूँ वो दूसरे सेक्शन में ही देता हूँ, जिसमें आप हेल्दी डिस्कशन कर पाएंगे। क्या मैं अपना पॉइंट रख सकता हूँ? जी, आप लोग स्टार्ट करें। सर आई वुड सर, आपने जो क्वेश्चन किया कि सोशल मीडिया का और साइबर सिक्योरिटी का क्या रोल है हमारे प्रिवेसी वाले फैक्टर में, सर आई थिंक सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है हमारे प्रिवेसी को इन्वेड करने में। एक्चुअली आई कैन नॉट से दैट कि इन्वेड करने, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे हमारी इंफॉर्मेशन जाती है वो हमारी कंसेंट से जाती है। तो अगर वहां से कोई डिटेल निकाली भी जाती है तो वो प्रिवेसी इन्वेजन नहीं हुआ। सेकेंड चीज, सर आपने जो साइबर सिक्योरिटी बोला उसके अंतर्गत एक 2018 में एक इंडियन लेजिस्लेटिव करके कुछ लॉ आया था जिसका नाम था, एक बिल की तरह वो पास होना था, इंडियन प्रिवेसी 2018, जिसमें ये 7 समराइज पॉइंट्स में उन्होंने 6 समरी में बोला था कि ये साइबर सिक्योरिटी एंड सोशल मीडिया प्ले अ ग्रेट रोल इन प्रोटेक्टिंग एज वेल एज इन what to say, deteriorating the privacy invasion. Next, please. So cyber security. So cyber security. Please continue. Sakshi, then followed by Shivam Pandey. All right. So, sir, cyber security. सर मैं छोटा सा एक पॉइंट रखना चाहता हूँ कि अगर हम देखें। ओके शिवम जी आप ही बोल लीजिए, उसके बाद साक्षी आप कंटिन्यू कर लीजिए। अच्छा सर, मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि अगर हम साइबर सिक्योरिटी के चरणों को देखें तो ये हमारा साइबर सिक्योरिटी का चौथा चरण चल रहा है। जैसा हम देखते हैं कि कोल्ड वॉर के बाद से ये शुरू हुआ और इस समय 9/11 के बाद से और आज तक का दौर जो है वो एक तरीके से साइबर सिक्योरिटी का दौर कहा जाता है, जो वैश्वीकरण का दौर कहा जाता है। उसमें एक तरीके से जिस तरीके से हर चीज
आज सोशल मीडिया से जुड़ गई है, वहीं पर हमारी जो राष्ट्र की अखंडता है वो भी सोशल सिक्योरिटी से जुड़ गई है। उसमें हर चीज में जैसे हम लोग देखें कि बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे हम लोग ने अभी ISIS का भी एक केस देखा था जिसमें एक लड़का था गुलफाम अली, उसका नाम था, तो गुलफाम अली का डेटा पूरा उन लोगों ने वहां से उठाया। जैसे अभी हम लोग देखें कि एक गेम आया था जिसमें बच्चे अपना जो गेम खेलते थे और उनके वहां से जितना पूरा डेटा था उसको वहां से उठा के, ब्लू वेल जिसका नाम था, वहां से उठा के बच्चों को ब्लैकमेल किया जाता था और बाहरी विदेशी तत्वों को, जैसे अभी हम लोगों ने कैम्ब्रिज एनालिटिका का भी नाम दिया, वहां पर जिस तरीके से डेटा को लीक करके और आंतरिक जो वैदेशिक संबंध है या उनके जो भी मतलब जो कारण है जिनके द्वारा हम वहां के लोगों को, वहां की सत्ता को और वहां के जो भी वैदेशिक संबंध है उनको हम प्रभावित कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि आजकल सोशल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया हमारे सामने कि किस तरीके से हम जो है अपनी सुरक्षा भी करें और साथ साथ अपनी प्राइवेसी के साथ साथ देश की भी प्राइवेसी करें। सर साइबर सिक्योरिटी इस तरीके से रिलेटेड है, सबसे साइबर सिक्योरिटी डायरेक्टली रिलेटेड है नेशनल सिक्योरिटी से। जैसे कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेड कि जब हम सोशल मीडिया पे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे अगर हम पॉलिसी जो भी वहाँ पे लिखा होता है हम चाहें तो हम अपनी प्राइवेसी को इन्वेड होने नहीं दे सकते हैं। वहाँ पे अपने अकाउंट को प्राइवेट करना भी आता है, पॉलिसी जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसे भी हम रीड करके जिस चीज पे हम अपने इंडिविजुअल प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के इनफ चांसेस दिए जाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम नेशनल सिक्योरिटी को देखें तो बहुत इंसिडेंट्स है, जैसे पैरिस अटैक्स अगर बेटर सर्विलेंस होता तो वो नहीं होते। 129 जो लोगों की लाइव्स थी वो क्लेम कर ली, मतलब वो मतलब उनकी वो मर गए थे 129 पीपल। एंड उनके वन ऑफ माई फ्रेंड सेड कि यूपी का पोटैटो वाला एक इंसिडेंट उन्होंने स्टेट करा कि कैसे लोगों की टैपिंग हो गई थी। तो फोन की टैपिंग आई डोंट थिंक इज मोर एग्रोवेटेड दैन किसी की लाइफ जो चली जाए, और एक बार में इतने लोगों की लाइफ चली जाती है। एंड शी ऑल्सो सेड दैट कि ये इट डजंट हैपन नाउ एंड देन, इट इज वेरी इनफ्रीक्वेंट, शी सेड दैट। तो पेरिस बहुत सारे इंसिडेंट्स कंटिन्यूअसली टेरर अटैक्स हो रहे हैं और ये लोग जो कनेक्ट करते हैं इट इज थ्रू सोशल मीडिया। सो आई थिंक अगर जो डाटा प्राइवेसी ओके ऑलराइट वैभव जी प्लीज पुट अप योर पॉइंट। मेरा बहुत छोटा सा पॉइंट है, मैं बहुत तो नहीं, मैं राष्ट्रीय अगर सुरक्षा से इसको रिलेट करूं तो अभी एक तरह से जल्दी में देखा होगा, अगर किसी ने ध्यान दिया होगा तो इंस्टाग्राम पे सभी पेजेस पे लगभग एक चूज करने वाला ऑप्शन आ रहा था, A और B, एक फ्लो सा चल रहा था, लगभग हर पेजेस पे चल रहा था, हर जगह चल रहा था, लोग उसे प्रेस कर रहे थे। तो एक तरह से एक डेटा निकाल रहा है, एक डेटा उनके पास आया और वो डेटा जरूरी नहीं कि वो डेटा उन्हीं के पास रहा। जैसे एक आदमी करता है, 2 आदमी करता है, 3 आदमी करता है, सबके सब तो कर नहीं सकते। तो अगर वो एक साथ होके सभी पेजेस सारी चीजें एक ही फ्लो में एक काम कर रहे हैं, कोई डेटा निकाल रहे हैं, तो वो डेटा किसी ने उनको मतलब एक तरह से बोला होगा या उनको कुछ ऑफर किया होगा, इस हिसाब से तब तो वो डेटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और वो आदमी जो चीजें करवा सकता है, जरूर तो भारत में बैठा हो तो देखा जाए सिक्योरिटी का अकाउंट किया जा सकता है। बहुत ओके पॉइंट वेल टेकन। तो अभी यहाँ पे हमारे बीच एक क्वेश्चन आया है विभू बनर्जी सर की तरफ से, और वो कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं। I want to speak here. I was just waiting for everyone to end it. Yes. बोलिए आप बोलिए। Okay. If it is okay. Yeah, sure. Okay. Actually, I was just waiting for others to just say their points, so I just didn't interrupt them. Okay. Before I speak, I want to reiterate the question itself, that how does the data privacy is related to this national security or the cyber security in terms of cyber warfare. So if we talk about this cyber warfare, it would be a very big concern, and the people who are mostly targeted are the people at a very higher post, which includes the army personnel, the people in the defense organization and other people. So
mostly the people are targeted are them through the any kind of information which can be related, and it mostly have been seen that it has honey trap or any through financial crisis or any kind of health disease. So these are the things which they look upon, and they find a very suitable pry, I might say. They just look for the individual which is very easily targetable, if in the easy words. And if we have to talk about the normal people uh, privacy in the case of the national security, that would be it's only seen in the election times. I would say that it is only has been seen in the election time when the data has been used aggressively just to promote one agenda of one party into their interest. Thank you. So, All right. So Syed Aksa wants to make some point over here. Syed Aksa. okay, so one of my fellow participants tried to backfire my statements. I want to clear out something कि जो मैंने terrorist वाली बात बोली, it not happens now and then. मेरा since उन्होंने अपनी speech में starting में clearly बोला था, I stand against this motion. तो इंडिविजुअल डेटा प्राइवेसी, या इफ आई टॉक अबाउट इंडिविजुअल, यानी कि अगर हम 135 करोड़ की आबादी में बात कर रहे हैं तो उसमें एक एक इंसान की भी हम बात कर रहे हैं. जो मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर जैसे कि मैंने लास्ट टाइम में अपने ये बोला कि इंडियन लेजिस्लेमेट के अंदर एक 2018 में इंडियन प्राइवेसी कोड 2018 आया था, जिसको जो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था कि उसको पब्लिकली रखा गया था ताकि उसमें लोग अपना वोट करें और ताकि इस बिल को पास करके एज अ लॉ बनाया जाए. और उसका 5वां चरण ये कहता है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो प्राइवेसी इन्वेट कर सकती है, बट इट शुड बी सर्टेन अंडर सर्टेन लिमिटेशंस, जिसमें कि टेररिस्ट वाला पोर्शन आता है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्राइवेसी इन्वेजन बहुत गलत है या टेररिस्ट नहीं होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम व्हेन आप 135 करोड़ में हर चौथे इंसान को टेररिस्ट नहीं मान सकते. आपको कुछ सर्टेन लेवल्स लेके चलने पड़ते हैं. दैट इज व्हाट आई वांट टू से. थैंक यू. All right. So there is a last question. पॉइंट रखना चाहता हूँ. Yeah, please, जितना short हो सके सर, please. हाँ सर, बस लास्ट क्वेश्चन ये रखना चाहता हूँ. जैसे कि अभी आतंकवाद की बात कही गई, तो हमने एक नाम सुना होगा हनी ट्रैपिंग, जो बहुत ज्यादा तेजी से हमारे देश में फैल रहा है. हनी ट्रैपिंग, जिसमें हमारे फौजियों को अलग अलग नंबरों से उनको फोन करके और उनको किस तरीके से जाल में फंसाया जाता है और उसके बाद उन्हें किसी भी होटल्स में ले जाकर, जैसा हम लोगों ने देखा था, और उन लोगों को बंदी बना लिया जाता है. इसलिए हमारी सेना ने कहीं ना कहीं फौजियों के भी फोन चलाने पर, उनमें उनके भी डेटा को मतलब संचालित होने पर उस पर रोक लगाई थी. और कश्मीर में हम देखते हैं जहां पर भी दंगा होता है या कहीं पर भी भारत के देश कोने पर जहां पर भी दंगा होता है, वहां पर हम सबसे पहले जो चीज बंद करते हैं वो इंटरनेट, जिससे किसी का डेटा लीक ना हो, जिससे लोगों के, क्योंकि आजकल ये आने का एक बहुत बड़ा एक संवाद का माध्यम बनता है. इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें अपनी डेटा प्राइवेसी को इस तरीके से यूज करना चाहिए कि हम उसका किसीकरण में यूज करें, ना कि हम उसको एक गलत. हमने फिर बार बार एक ही चीज कोट की है कि न्यायालय का कोई भी अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है. ये हाफ अधिकार है जो हमारे नागरिकों को जाते हैं या आतंकवाद में संलिप्त होते हैं, तो उनके अधिकारों को न्यायालय और सरकार छीन भी. ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पॉइंट वेल टेकन मिस्टर शुभम पांडे जी. जैसे कि शुभम पांडे जी कह रहे हैं कि जब भी कहीं पे एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जहाँ पे कहीं राइट्स हो रहे हो, तो सबसे पहले इंटरनेट को बंद किया जाता है. इसी सिरे में विभू बनर्जी सर हमारे बीच है, एडवोकेट फ्रॉम हाई कोर्ट लखनऊ, और उनका एक सवाल है, अंतिम क्वेश्चन है. आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक लाइन में जवाब अगर दे पाइएगा तो प्लीज जितना शॉर्ट हो सके उतना रखने की कोशिश करिएगा. द क्वेश्चन इज कि उनका ये कहना है कि जिस तरीके से अभी हाल ही के दिनों में डेटा और एप्लीकेशंस को बैन करने का एक पूरा मूवमेंट टाइप का चला हुआ है. चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन किया जा रहा है, बाहर के कंट्रीज के एप्लीकेशन को बैन किया जा रहा है, और अपने एप्लीकेशंस हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं. तो डज बैनिंग ऑफ एप्लीकेशन इज अ फीजिबल और इफेक्टिव वे इन प्रोटेक्शन इंडिविजुअल डेटा प्राइवेसी? Sir, please repeat your last statement. The question is कि does banning applications is a feasible way in protecting individuals' data? नो सर, आई टोटली स्टैंड अगेंस्ट द क्वेश्चन कि ऐसा हो ही नहीं सकता. अगर आप हर एक ऐप बैन करने लगेंगे तो आपको तो सब कुछ ही बंद कर देना चाहिए. यहाँ पे अगर हम और आप कनेक्ट कर पा रहे हैं बिकॉज हमने भी गूगल मीट पे अपनी ईमेल आईडी अपनी चीजें डाली हुई हैं,
तो ऐसा नहीं, आप सब कुछ बैन नहीं कर सकते। देयर आर सर्टेन मेजर्स जो गवर्नमेंट को, जो इंसानों को खुद इतना एथिकल इन्वायरमेंट खुद का बनाना चाहिए कि वो अपने आप की सिक्योरिटी के लिए कर सके चीजें। तो या मेरा यहाँ पर कहना ये है कि जिस तरीके से मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था ये उससे बिल्कुल रिलेटेड है। जिस तरीके से अभी भी हमारे समाज में देख रहे हैं, सबके हाथ में मोबाइल फोन तो है लेकिन सबके पास जागरूकता नहीं है। बहुत लोग परमिशन वाले सेक्शन को, जैसे भाई ने कहा था, तो परमिशन वाले सेक्शन को बहुत लोग स्किप कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो अन्य देश है वो हमारे डेटा को उठाकर हमारे, जैसे मैंने पहले भी रखा था कि हमारे फौजी हो या हमारे आम नागरिक हो, जैसे हम लोग कल देखे कि गोवा के मुख्यमंत्री के ही फोन से और एक अश्लील फोटो जो है वो जारी कर दिया गया था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जहां तक राष्ट्रीय अखंडता की जहां पर बात आती है वहां पर सरकार को हर वो फैसला लेना चाहिए, फिर वो ऐप बैन हो या कुछ भी बैन हो, जहां पर राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता की बात आती है वहां पर ये कदम उठाना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, सो आप सभी को बताते हुए खुशी भी हो रही है कि हम इससे आगे आर्ग्यूमेंट नहीं ले पाएंगे क्योंकि 15 मिनट का समय पूरा हो चुका है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत ही बखूबी तरीके से आपने इन आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ पे रखने की कोशिश की है। बट इससे पहले कि सर अपना ओपिनियन दे इस टॉपिक पे, मैं भी आप सबको ये बात बताना चाहूंगा कि डेटा प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए तो हम सभी बहुत अच्छे तरीके से सभी लोगों ने पॉइंट रखा और किस किस तरीके से डेटा प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप किए जाते हैं। अगर एडवर्ड स्टूडेंट का भी एग्जाम्पल दिया जाए, उसने बड़ा हैकर अगर होकर के वो अमेरिका की विकीलीक्स की सारी डिटेल्स को अगर लीक कर सकता है तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि हमारे जो साइबर वर्ल्ड है कितना ज्यादा फीजिबल हो गया है फॉर हैकर्स एंड पीपल हु वांट टू क्रिएट अनरेस्ट इन द सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी हम एक क्लिक भी अगर करते हैं कहीं पे भी, तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उस चीज को बहुत ध्यान से देखें कि क्या वो चीज एक जेन्युइन साइट है या नहीं है। हम उसके आईपी एड्रेस अगर हम थोड़ी बहुत भी नॉलेज में डिटेक्ट कर ले कि क्या वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे है या नहीं, क्या उसका डोमेन ऐसा है जिससे हम फेमिलियर है या नहीं, उसके बाद ही हमें उस पर जाके कोई भी प्रोसेस लेना चाहिए या उस पर वर्क करना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही सैयद अख्तर ने, जैसे कि ये डेटा प्राइवेसी के कारण, अगर डेटा प्राइवेसी के जो टर्म्स लिए जा रहे हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे गूगल है, जूम है, यही इनका जो ट्रस्ट है हम पे बन के आ रहा है कि हम इनको अभी भी यूज कर रहे हैं। और बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए भी चूज करना कि हम किसी तीसरे ऐप को यूज कर पाए, क्योंकि हम अवेयर हैं कि हमें अपने डेटा को कहाँ पे ट्रांसफर करना है, किस ऑर्गेनाइजेशन को हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इसी सिरे में आगे बढ़ते हुए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे आज के जूरी मेंबर मिस्टर दुर्गेश कुमार पाटिल सर से कि वे अपना ओपिनियन प्रेजेंट करें इस इशू पे और किस तरीके से हम प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं, कैसे अपनी डेटा की गोपनीयता को बनाए रख सकते हैं, इसका अपने ओपिनियन दे सर। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने अपनी बात को रखा। मैं खुद कोशिश कर रहा था कि मैं थोड़ा बहुत आप लोगों से सीख पाऊँ। बहुत अच्छे पॉइंट्स कई सारे लोगों ने बोला, साक्षी जी ने, जीनिया जी ने, शिवम पांडे जी ने, शिवम सिंह जी ने, बहुत अच्छे अच्छे आपने पॉइंट्स बोले हैं। मैं खुद कोशिश कर रहा था कि मैं कुछ नया नया सीख पाऊँ। हम सभी की आज की डेट में प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, हम सभी को पता है, हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं, हम सभी को पता है जो अगला वॉर होगा हमारे देश में वो नहीं लड़ा जा सकता है गोले बारूद और बम से, वो न्यूक्लियर वॉर भी नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, वो साइबर वॉर ही होगा। तो हम जितना भी हो सके अपने मोबाइल पे अपने डाटा को, क्योंकि हमें कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं। मैं खुद डिफेंस के बैकग्राउंड से आता हूँ, हमें पता है कि अगर हम एक छोटी सी अपनी फोटो भी डाल दें, आर्मी की यूनिफॉर्म में अगर हमारे घर का कोई इंसान फोटो डाल दे तो उसका कोर्ट मार्शल तक हो सकता है, उसकी नौकरी तक जा सकती है। क्यों? क्योंकि उस पर उसका नंबर होता है, उसके पीछे की लोकेशन हो सकती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें बहुत आम लगती है मगर उसकी वजह से कई लोगों की जान जा सकती है। तो डाटा पे हमें हमेशा अपना ख्याल रखना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी वेबसाइट भी यूज़ करें, हम जहाँ अपनी फोटोज अपडेट कर रहे हैं उस पर थोड़ा बहुत हम ध्यान रखें, अपनी जागरूकता को इस फील्ड में एटलीस्ट बढ़ाएं, अपने दोस्तों के साथ भी वही कंटेंट शेयर करें, वही नंबर शेयर करें, उतनी ही बात करें जितना कि हम कई बार आप देखेंगे कि छोटे छोटे मुद्दों पे हम ग्रुप्स में ऐड होते हैं, हमें पता तक नहीं होता उस ग्रुप में डिस्कशन क्या चल रहा है, उस ग्रुप में बातें क्या चल रही हैं। हम सिर्फ इस वजह से ऐड हैं, किसी भैया ने या किसी दीदी ने कहा है कि आप ऐड हो जाओ, हम ऐड हैं। मगर आज के डेट में अगर उस ग्रुप में ऐसी कोई कंटेंट जाता है, ऐसा कुछ चीज जाती है जो हमारे देश की स्वाभिमान के खिलाफ है, तो हम लोग भी जा सकते हैं, बड़े आराम से जेल में जा सकते हैं, हमें हमारे ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो हम किस व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़े हैं, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। हम उन लोगों से, अपने दोस्तों से भी किस तरह से बात करें, हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। इतनी सारी बातें आप सभी लोगों ने बोला है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद कुछ भी बचता है जिसपे मैं और डिस्कशन करूं। मैं अंत में सिर्फ यही कहूंगा आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग जो आपके हाथ में ये आज के डेट में डिवाइस है, इसका पूरा ख्याल रखें
कोशिश करें कि इसका मिसयूज ना हो पाए किसी भी तरीके से, अच्छे तरह से इसका इस्तेमाल करें। फालतू की चीज़ों से, फालतू के कंटेंट से, फालतू की वेबसाइट से, फालतू की ऐप से भी कई बार, मैंने एक बार एक चीज़ बोली भी थी कि हम अगर चाइनीज़ ऐप की बात करते हैं तो कुछ लोगों ने मुझसे बात कही थी कि भैया एक चाइनीज़ ऐप को डिलीट करने से क्या होगा। तो मेरा सिर्फ सीधा सा मानना ये है कि अगर किसी एक चाइनीज़ ऐप को आप डिलीट करते हैं उससे कुछ नहीं होगा, मगर साइकोलॉजिकली एक दूसरे देश पे इस बात का प्रभाव पड़ता है कि एक देश जो पूरे विश्व का व्यापार चलाता है, अगर वो अपने पे आ गया तो किसी की भी ऐसी तैसी कर सकता है। अगर वहाँ के युवाओं ने, क्योंकि हम आप और मैं ही चलाते हैं, हमारे मम्मी पापा या छोटे बच्चे जो हमसे 10 साल छोटे हों या हमसे 10-20 साल बड़े हों, वो कुछ नहीं करते हैं सोशल मीडिया पे, सब हम करते हैं। अगर हमने चाह दिया कि भैया चाइनीज ऐप बंद, तो वो बंद है। और आप खुद सोचिए एक बार को कि एक देश, जिस देश का जवान शहीद हो रहा है दूसरे दिन, हम उसी देश पे कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली उस गोली को हम स्पॉन्सर करते हैं जो हमारे देश के एक जवान पे चलती है, क्योंकि हम वो चाइनीज ऐप यूज कर रहे हैं, या किसी भी ऐसे देश के साथ जिसके हमारे आंतरिक संबंध दोनों देशों के अच्छे नहीं, हम यूज कर रहे हैं। तो हमें अपने दिमाग के साथ कोई भी हम ऐप यूज करें, हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप सभी के पास टाइम बहुत कम है तो मैं ज्यादा बातें नहीं बोलूंगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच अमर उजाला, थैंक यू सो मच टीम जज्बात, जिन्होंने इतना अच्छा इवेंट क्रिएट किया। थैंक यू सो मच देवांश। तो बिल्कुल सर, यहाँ से हमसे विदाई ले, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टडीज के सर मेरिटोरियस स्टूडेंट रह चुके हैं। ही हैज बीन द टॉपर ऑफ दैट ईयर बैच, 2 साल के लिए लगातार सर टॉपर रहे थे। तो कहीं ना कहीं डिफेंस स्टडीज से रिलेटेड टॉपिक, डेटा प्राइवेसी, साइबर वॉर से रिलेटेड इनकी जो नॉलेज है वो हम सबसे कहीं ऊपर और कहीं ज्यादा परे है। तो थैंक यू सो मच सर कि जो बातें आपने आज हमको बताई, और कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात कही है भैया ने कि कहीं ना कहीं हम उस गोली को स्पॉन्सर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उन सब्जेक्ट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारी फंडिंग जो यहाँ से वो करके जा रही है वो कहीं ना कहीं चाइना तक पहुंच रही है। और अगर बात करें डेटा प्राइवेसी की, तभी एक मुझे बहुत ज्यादा मजेदार बात याद आई है कि जब हम आज से 2-3 महीने पहले व्हाट्सएप यूज करते थे तो ऊपर केवल एक पतली सी लाइन लिख के आती थी कि द डेटा इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। बट जब से सुशांत सिंह वाला केस हुआ है और जब से पूरा का पूरा जो चैट है वो खोल करके सोसाइटी में सामने रख दिया गया है, तब से व्हाट्सएप ने उस लाइन को बढ़ा करके 8-10 लाइन का कर दिया है। अगर आप अपने व्हाट्सएप पे जाके अभी देखिएगा तो उसमें अब बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिख के आता है कि नहीं 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 ये सब झूठ है, वी आर स्टिल कीपिंग इट एनक्रिप्टेड एंड ये वो। बट माय पर्सनल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज दिस कि आप सब इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, यू आर एवरी टाइम 24/7 अंडर सर्वेलेंस। जैसे कि शिवम पांडे भैया ने बहुत सही बात रखी है कि जब भी आप कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जो कि किसी की इंडिविजुअल की डिग्निटी का हनन करता है, देश की डिग्निटी का हनन करता है, या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का हनन करता है, तो अल्टीमेटली आप उस थ्रेट सर्कल में आ जाते हैं। और आप उसने रिप्लाई किया हो या आपको उसने आपसे अपनी प्रतिक्रिया दी हो या नहीं दी हो, आप उसके मेंबर है तो आप भी उसमें नपे जाएंगे। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिए, अपनी सिक्योरिटी और अपनी प्राइवेसी अपने हाथ में ही होती है, क्योंकि हो रहा ये सब। एकदम लास्ट में आप लोगों से बोलना चाहूंगा जी। हाँ, मैं एक बहुत छोटी सी लाइन एकदम लास्ट में आप लोगों से बोलना चाहूंगा। मैं पिछले 1.5 साल से उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक छोटे से प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। वो प्रोजेक्ट साइबर सिक्योरिटी को लेके ही है, और मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाहूंगा कि आपके मोबाइल में जो भी कुछ है वो सब, अगर मैं सिर्फ यूपी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस चाहे, वहाँ की जो साइबर सिक्योरिटी की टीम चाहे, तो आपके मोबाइल का एक एक चीज, आपके कॉन्टेक्ट, आपके गैलरी में कितनी फोटोज हैं, आपने व्हाट्सएप पे किससे बात किया है, आपने फेसबुक के मैसेंजर में किससे बात किया है, इंस्टाग्राम पे किससे बात किया है, सब कुछ निकाल के बाहर रख सकती है। तो सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ कोई भी सामान प्राइवेट नहीं होता है, ये बात आप सभी अपने दिमाग में रख लें। तो जो मैंने आज अपने दोस्त से 500 रुपए मांगे हैं वो मैं उससे मैसेज अनसेंड कर दूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी कुछ ऐसे चार्जेस लग सकते हैं। मुझे डर लग रहा है किन किन लोगों को मैंने मैसेज किया है, ये मुझे देखना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने यहाँ पे हमें अपना समय दिया, और हर बार जब भी सर हमारे बीच आते हैं इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, क्योंकि इतनी सारी नॉलेज है सर को, सर इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म पे जा चुके हैं। सर हैज बीन एन इंटरनेशनल शूटर, ऑल्सो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कजाकिस्तान और भूटान में सर कर चुके हैं, फ्रॉम इंडिया रिप्रेजेंटिंग इंडिया इनटू 10 मीटर एयर राइफल। इतनी सारी चीजें सर के पास है बताने को, अगर 2-3 टॉपिक्स और रख दिए जाए तो उन पे भी सर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें अपना समय दिया। हर बच्चा आपसे यहाँ पे जुड़ना चाहेगा आई गेस, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, एंड उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर फिर से टीम जज्बात कार्निवल के साथ आएंगे, नए टॉपिक्स होंगे और आप हमें मदद करेंगे उन सभी विनर्स को फाइंड करने में। थैंक यू सो मच सर, जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
Thank you, sir. जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद।